जैसे जैसे शुरू में बात हुई थी इजेक्शन फ्रैक्शन की, there is cardiomegaly with ventricular hypertrophy, so उसके वजह से ejection fraction might have gone down, right? जैसे आप कह रहे हो हार्ट एक तो blood thick हो गया, then the ejection fraction is probably low. Yeah. Yes. दोनों हो सकता है, ऐसा combine करके must have caused the problem, right? So आज हमारे साथ हैं दिव्य, who is a bodybuilding coach, amazing coach, and we have Dr. Prashant, who is again a bodybuilding coach who has competed himself. And मैं बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ, बट पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा इनकी तारीफ करते करते. आज का टॉपिक है जॉर्ज पीटरसन एंड उनकी ऑटोप्सी, जो उनकी डेथ हुई थी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. एंड बहुत ऐसे पॉइंट्स पकड़ने वाले हैं जो इंडिया में किसी ने अभी तक कवर नहीं किया. दिस इज गोना बी द फर्स्ट वीडियो जहां पे ये होने वाला है. एंड थैंक यू दिव्य एंड थैंक यू डॉक्टर प्रशांत फॉर कमिंग इन. वी कैन स्टार्ट नाउ एंड मैं साथ में स्क्रीन पे वो लेके आता हूँ ऑटोप्सी एंड वी कैन बिगिन. ओके, परफेक्ट. I just wanted to see potassium level. Okay, let me do that. Yeah. ये सबसे कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आई गेस. So, दिव्या आपको स्टार्ट करना है, or should I start? सर से स्टार्ट कराओ. जो ये पहले तो सर आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे? See, I would like to tell about my experience of cardiomyopathy because I have suffered a lot. Means I have gone through it, so I know what is the mechanism and how it gets aggravated and which kind of symptoms usually people neglect. So once you spoke about this in your video, I saw that video with Satvik sir. Your train usage was something here and there, and you had cardiomyopathy. Yes. So heart in this case, I won't blame diuretics directly because before dying, he had done his workout and everything. He was perfectly fine because इंडिया के जो एथलीट है उनके दोस्त उसके साथ वर्कआउट कर रहे थे, तो उनके थ्रू मुझे पता चला था कि he had not taken gap since last 2-3 years, I guess, and his coach was continuously insisting him for his blood routine reports and everything, but he never gave. So consistent in what, like in drug usages? Yes. Since मतलब उसने 2 साल से I can say since last 2 years he was on. So there is a difference between doing cycles on and off and going continuously on. So ये पूरा scene change कर देता है. Right. So doctor, is that what blasting and cruising is? No, blasting and cruising is totally different. Blasting is kind of a shock, and I don't believe in that because see, people do blasting and cruising, but I don't think George has done that. Right. But उसके बायोप्सी में जो मिला था वो काफी दो ही चीजें मिली थी, right? Stanozolone and Boldenone it was, right? Yeah, that is correct. Yeah. So blasting और cruising करने वाले इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे और वो काफी सारे कंपाउंड्स यूज करेंगे. प्रॉब्लम विथ जॉर्ज वाज उसने कभी ऑफ नहीं लिया था 2 साल से. Right. और उसने अपने कोई भी रूटीन चेकअप जो करवाने थे वो कोई भी चेकअप नहीं करवाया था. अच्छा, ओके, वाओ. सो गो अहेड, बताओ. बट मैं इस ऑटोप्सी रिपोर्ट से आई विल से कि सीइंग हिज बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल, और ऑफ कोर्स वो ऑल ईयर राउंड ड्रग्स पे रहता होगा अकॉर्डिंग टू जैसा कि प्रशांत सर बता रहे हैं. आई सी हिज ऑटोप्सी रिपोर्ट टू बी क्वाइट फाइन. मतलब no, the main factor, thing which is responsible is left ventricular hypertrophy, right? Yes. LVH. Yeah. So that is more than sufficient. So लेकिन इसमें in the left ventricular hypertrophy they are saying कि the main reason for death was dysrhythmia and hypertension. Yeah. बट देखो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, तो एक पैथोलॉजिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी आई गेस कम्स अराउंड 400 ग्राम्स का हार्ट होगा, तो दैट इज द एवरेज कट ऑफ, आई गेस. No, the reason mainly in such cases is
reduce ejection fraction, Yeah, but right? but the So, mortician in this report hasn't mentioned the cavity of the left ventricle. yeah, but we can consider that because boldenone was there, and boldenone increases your RBCs drastically, right? Stanozolol also does the same thing. So Okay. because of RBC, high RBC, hemocrite value high होगा उसका, और उसके वजह से जो एंजियोटेंसिन के ऊपर इफेक्ट है वो भी ज्यादा आ रहा है कंटिन्यूअसली. जो अपना रास सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, वो अफेक्ट हो रहा है. दूसरा TNF अल्फा करके एक फैक्टर होता है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. फिर सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स है, वो स्टिमुलेट होते हैं. सो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो इट गिव्स यू एक्स्ट्रा कोलेजन, एंड थ्रू दैट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट? और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का आपको बॉडी बिल्डर को सिम्टम्स क्यों नहीं आते? बिकॉज इजेक्शन फ्रैक्शन का लो इजेक्शन फ्रैक्शन, जैसे आपकी सांस चढ़ना, राइट? तो सांस चढ़ना, बॉडी बिल्डर रिलेट दिस टू यूज ऑफ क्लेनबुटरॉल. Yeah, but no clenbuterol was found in his report. Okay, so but still unko and one more reason I want to mention is that his cholesterol level was normal, right? The cholesterol levels are not mentioned here. Oh, that's the main issue. That's the main issue. Because this is an autopsy report. Heart हाँ ऊपर, ठीक है. मतलब मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ सर, ठीक है. सो माय टेक ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज के लेफ्ट वेंट्रिकुलर बहुत सिग्निफिकेंट है, बट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जनरल पॉपुलेशन में भी पाई जाती है. एंड इफ वी कंपेयर जॉर्ज केस विथ डायलिसिस केस, डायलिसिस हार्ट वाज ऑलमोस्ट लाइक 800 और लाइक above 800. 833. right? Yeah. 833. His heart was like 833. And I'm trying to connect this thing with acromegalic patients who suffer like high amounts of GH and IGF-1 signaling. So the cutoff for pathologic left ventricular hypertrophy in acromegalic patients is around 500. Around 500. So according to जो mostly जो acromegalic patients होते हैं, basically giants, जिनका GH और IGF बहुत हाई होता है बचपन से ही, तो उनकी यूजुअली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज उनको होती है, और यूजुअली लाइक दे डाई इन देयर 50s और लेट 40s. एंड द मेन रीजन इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट का फेल होना. तो इस केस में होता क्या ना कि GH वाटर बहुत होल्ड करता है ऑर्गन्स के अराउंड और ऑर्गन्स के अंदर भी. तो व्हेन द वाटर गेट्स यहाँ पे जब वाटर होल्ड होता है तो it gets hard for the heart to beat. And then this left ventricular hypertrophy is इस वजह से LVH भी exaggerate होता है. Of course बहुत से reasons है. No, the thing which you're talking about, it is a dilated cardiomyopathy. Yes. That is dilated cardiomyopathy, and that gives symptoms. You'll get cough continuously. You'll get cough, heavy breathing, and diastolic dysfunction will be there. No, I was talking in general. लेकिन इस केस में I guess I'm sure like George का weight limit था. He was not playing in open class. He was in 212, right? 212 division. So उसको अपने weight को control में रखना होगा. तो I don't think कि उसकी जो growth hormone की use होगी उतनी blatant होगी. Like Dallas McCarver जैसी जितनी blatant नहीं होगी. तो GH induced जो hypertrophy heart में आई है उतनी नहीं है. And also normal athletes face this condition of left ventricular hypertrophy. Normal athletes, natural athletes also. Athletes heart No, is but what कहते हैं. Hypertension was there, right? It is mentioned, right? But मेरे को एक बात नहीं समझ आई यहाँ पे कि in an autopsy report how they have like managed to know कि वो hypertensive था. For a person who's not alive to find out he was hypertensive, they have mentioned it through left ventricular hypertrophy कि hypertrophy थी, जो interventricular जो walls है heart की वो thick हो गई है, तो of course hypertension वजह होगी. They have guessed it, I guess, because autopsy में mortician के पास
आई डोंट थिंक कि हाइपर टेंशन कैलकुलेट कर पाना कि बंदा हाइपर टेंसिव था लाइक फॉर मल्टीपल इयर्स, इट इज नॉट लाइक इतना मतलब मोटिवेशन ये पता नहीं लगा सकते एक डेड पर्सन के लिए। तो आई थिंक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जो हुई है हार्ट में, उसकी वजह से इन्होंने इसको नेम किया है। दैट वाज लाइक माय टेक। अब मैं मेरा ओपिनियन दूं थोड़ा। हाँ ओके सर। So I was having pain in my left shoulder. Okay. So although it was not related to heart, it was because of my weak shoulder capsule, right? But Okay. I went to cardiologist and he did 2D echo. वहां पे उनको डाउट आया तो स्ट्रेस टेस्ट करके एक होता है वो किया, तो स्ट्रेस थैलियम करके एक टेस्ट होता है ऐसे कुछ, तो वो करने के बाद, वो होने के बाद दे सेड यू हैव sarcoidosis. Oh. Because ejection fraction was hardly 37. Oh. They said you have sarcoidosis, and I got scared. Sarcoidosis is like you can die, and it, मतलब कभी भी तुम्हारी डेथ हो सकती है. So then I went to best cardiologist. उन्होंने 2D को देखा and he said sarcoidosis के chances था. उन्होंने cardiac MRI किया तो बाद में पता चला कि ये low ejection fraction with global hypokinesia. Okay. And then he took my history when I said कि it was because of Trent's extended use. So actually he also didn't understand. So उन्होंने क्या किया, जो 4 से 5 बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है उनकी टीम मेरे सामने बैठी थी टू डिस्कस माय केस. ओके. सो उन्होंने जो पाथवेज डिस्कस किए, आई वाज लिसनिंग एवरीथिंग. सो मेन थिंग वाज एंजियोटेंसिन 2. सो मुझे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर पे रखा गया एंड टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर बीटा ब्लॉकर्स दिए गए थे, ब्रिसोप्रोलोल, राइट. सो इन दोनों के ऊपर मुझे रखा गया एंड ही सेड यू विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 years टू रिकवर फ्रॉम दिस. और उसके बाद देन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च अबाउट इट. सो व्हाट आई हैव कम टू नो कि एंजियोटेंसिन 2 इज नॉट द ओनली फैक्टर. व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, कॉकटेल. व्हाट इज कॉकटेल? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. कॉकटेल इज, सी, एक तरफ से आप एंड्रोजेंस ले रहे हो, राइट. वो आपके बॉडी के ऊपर एंजियोटेंसिन के थ्रू इफेक्ट कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे बीटा 1 रिसेप्टर के थ्रू इफेक्ट कर रहा है, टीएनएफ अल्फा के थ्रू इफेक्ट कर रहा है, राइट. ये एक पाथवे हुआ. दूसरा, आप एंटी ईस्ट्रोजेंस ले रहे हो, एंटी ईस्ट्रोजेंस टू ब्लॉक यू, टू रिड्यूस योर ईस्ट्रोजन लेवल, गायनेकोमास्टिया के डर से. या फिर दूसरा एक मिथ होता है कि ईस्ट्रोजन होल्ड्स वाटर. सो एंटी ईस्ट्रोजन लेने की वजह से कार्डियक, हाँ ये मिथ है, लोगों को ये लगता है कि ईस्ट्रोजन इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्लोटिंग. सो पीपल टेक एंटी, यस मैं सब बॉडी बिल्डर्स को स्टडी करने के बाद आपको बोल रहा हूँ. दे टेक एनास्ट्राजोल 1 mg per day during last 20-25 days before the show, और या फिर एरोमेजिन लिया, है ना. सो उसके वजह से आप कार्डियक टिश्यू के ऊपर एक्स्ट्रा लोड ला रहे हो. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये लोग क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी बिल्डर का हाई जाता है, राइट. तो उसे कंट्रोल करने के लिए हेवी स्टैटिन्स यूज होते हैं. अब स्टैटिन्स का एक हॉरिबल साइड इफेक्ट जो काफी कम लोगों को पता है कि स्टैटिन कैन डिप्लीट योर CoQ10 लेवल्स ड्रास्टिकली. CoQ10 जो एंजाइम आपके हार्ट, ubiquinol. Yes, ubiquinol is a potent form of CoQ10 enzyme. Ubiquinol and ubiquinol. Yes, these are two forms of CoQ10, but in your body CoQ10 gets depleted. So ये जो कॉकटेल बनता है, हाँ, और उसके बाद फिर आते हैं डायूरेटिक्स के ऊपर. डायूरेटिक्स में क्या, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, मतलब पोटेशियम का परसेंटेज आपके बॉडी में बढ़ता जाता है बिकॉज पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होता बाकी के मिनरल्स के साथ, राइट. तो इन सबका जब कॉकटेल बनता है ना,
तो आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट दिखाता है, एंड दिस कैन बी द रीजन फॉर अरिथमिया. Yeah, the reason with potassium sparing diuretics is कि पोटेशियम का लेवल बढ़ता जाता है तो हाइपरकैलेमिया हो जाती है. So we cannot say कि this was the only factor responsible for his death. Like अगर बोल्डेनोन दिया है या स्टेनाजोल दिया है या डायरेटिक्स, इन सब का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो इस लेवल पे चीजें पहुंचती. और ये कॉम्बिनेशन कुछ कुछ चीजें, जैसे एंटी एस्ट्रोजन की जरूरत नहीं है, राइट? वो यू डोंट रिक्वायर डायरेटिक्स, राइट? आपको स्टार्टिंग से हेवी डोसेस, स्टार्टिंग से आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो अनलेस एंड अनटिल आपके बाकी के आरबीसी भी हाई है, बाकी की सारी चीजें भी हाई है, जब आपका टोटल हिमेटोक्रिट हाई है, वैल्यू हाई है, तभी आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की सोचो. अदरवाइज यू डोंट नीड टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल दैट मच. सो ये फैक्टर्स अगर आप कंट्रोल करो तो काफी हद तक 70 to 80% चांसेस कम हो जाते हैं हार्ट के ऊपर साइड इफेक्ट. दिस इज माय स्टडी, माय ओपिनियन. अब अभी ट्रेन का आप बोलोगे, ट्रेन, बोल्डेनोन, ये सारी चीजें, तो उनका अलग से हम बात कर सकते हैं. बट मैंने आपको कॉकटेल बता दिया कि कैसे कॉकटेल काम करता है. The whole bodybuilding lifestyle, you know. Yeah. Androgens, growth hormone, IGF, diuretics, anti-estrogens, everything. The cocktail of everything leads to these things. दूसरी एक बात पॉइंट रह गया कि आप जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे हो या फिर आप ग्रोथ हार्मोन्स पे हो तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस देती है. इंसुलिन रेजिस्टेंस आता ही है. तो कुछ लोग ग्रोथ हार्मोन पे रहते हैं तो उसके साथ इंसुलिन भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि टू बी ऑन अ सेफर साइड की बीटा सेल्स पे लोड कम आ जाए, बीटा सेल ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट करके मतलब उनका फंक्शन कम ना हो जाए, मतलब उनके ऊपर का लोड रिड्यूस करने के लिए एक्सटर्नली इंसुलिन लिया जाता है. बट जिन्हें पता नहीं है और वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ हार्मोन्स यूज कर रहे हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू या इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, या फिर विसरल एडिपोज टिश्यू आप बोल सकते हो, उनका परसेंटेज अगर बढ़ गया तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जो एमटोर पाथवे उसके थ्रू एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स डायरेक्टली काम करते हैं आपके बॉडी के ऊपर. So maybe chances of some cancer. Yeah. कैंसर के चांसेस में इतने नहीं बोलूंगा. व्हाट आई हैव सीन बॉडी बिल्डर्स में चांसेस के कैंसर के चांसेस काफी कम देखे मैंने. मे बी माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन काफी ज्यादा सही से होता होगा बॉडी बिल्डर का, लेकिन जितना अब्यूज बॉडी बिल्डर करता है उस लेवल पे अगर आप देखो तो बॉडी बिल्डर में चांसेस कैंसर के काफी कम है. ग्रोथ हार्मोन यूज करते हैं, इंसुलिन यूज करते हैं, दे यूज ईच एंड एवरी सिंगल हार्मोन आई कैन से, बट स्टिल कैंसर के चांसेस काफी कम है. लेकिन ये जो बॉडी बिल्डिंग पूरी लाइफस्टाइल है, आपका प्रोटीन इंटेक, आपकी वेट ट्रेनिंग, आपका स्टेरॉइड्स, आपके जीएच, आईजीएफ, ये सारा कुछ एम्ट और ग्रोथ पाथवे को इतनी तगड़ी तरीके से पुश करते हैं. और लाइक और these growth pathways when they are pushed very forcefully they lead to cancers. कि अब वो कुछ mTOR inhibitors भी बनाया जा रहा है कैंसर को रोकने के लिए. So I think कि बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल खास करके the open class where the use of growth hormone is blatant, cancer chances are there. I mean, it's inversely proportional to your longevity, right? Yeah, inversely proportional to your longevity. But people say GH is also anti-aging, so it also depends upon doses you are taking. Like if you are abusing it, there is a difference between use and abuse. Right. If you are going above 4-5 IUs, then it may give you cancer. Right. So the I have heard that international circuit is taking 20-25 units and above. People like Dallas. In India, I have seen people taking about 10 IUs per day. I have seen that. Oh, so if growth hormone gets involved, I think the cancer chances goes up. No, see, from अगर आप लिटरेचर पढ़ के बोल रहे हो तो yes, बट मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आज तक मेरे जानकारी में सिर्फ एक ही साउथ का बॉडी बिल्डर था, उसे ब्रेन कैंसर हुआ था. इट वाज नॉट ब्रेन कैंसर, इट वाज ब्रेन ट्यूमर. सो मैंने आज तक किसी बॉडी बिल्डर को कैंसर इंडिया में होते हुए देखा नहीं.
Right. ब्रेन, मैं इंडिया की बात बताता हूँ स्पेसिफिकली आपको एक हम्म। इंडिया, ये जो ब्रेन कैंसर है ना, ब्रेन कैंसर विल जस्ट नॉट गेट रिस्पॉन्डेड बाय आईजीएफ। उसके लिए जो बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं ब्रेन के अलग से, न्यूरोट्रॉफिक ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारे भी हाई होने चाहिए। सेरोटोनिनर्जिक सिग्नलिंग हाई है, और जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग हाई है, ग्रोथ फैक्टर्स, बीडीएनएफ, ये सारे अगर ग्रोथ फैक्टर्स हाई होंगे और फिर ऊपर से आईजीएफ-1 हाई होगा, तो ब्रेन कैंसर इंड्यूस होगा। एंड स्पेशली फॉर इंडियन बॉडी बिल्डर्स, ये इंडियन बॉडी बिल्डर्स ओलंपिया लेवल ह्यूज क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि इनकी जो आईजीएफ के रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसमें दे आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव। इसीलिए ब्लेटेंट यूज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इसलिए भी सही नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस ऑलरेडी साउथ ईस्ट एशियंस, हमारा जो IGF-1 है, मोस्टली फॉर मोस्ट ऑफ अस, IGF-1, वी आर नॉट दैट रिस्पॉन्सिव टू IGF-1 व्हाट इज African Americans are. So maybe we are not responding to that high dosages of IGF. So maybe that is why we are not developing cancer. But ये African American में जो genetic polymorphisms है IGF को लेके, they are highly responsive. Like even if Okay. अगर मैं एक normal Indian को उठा के देखूं और उसको मैं GH का abuse करूं, and some guys like African Americans like Philly, और उन पे GH का abuse हो, तो they will grow much more. And here comes the genetic polymorphisms in IGF receptors. Right. So that is why maybe Indian bodybuilders are not getting cancer at that level, because we are not responding to IGF very well. And that is also a reason why we are not getting that Olympia open class level huge. That can be the reason, yeah. And maybe we are also not using that, we are not blatantly abusing growth hormone. So that can be beneficial for heart hypertrophy, right? Yeah. Yeah. Because we are In not Indians, you responding won't to- get that much hypertrophy. Yes, because we are not responding to that high level of IGF. Yes. इसीलिए if अगर कोई अपनी जेनेटिक टेस्टिंग कराता है, एंड अगर वो अपने IGF-1 रिसेप्टर की सेंसिटिविटी देख ले कि वो कितना रिस्पॉन्ड कर सकता है अपने IGF को, तो मे बी उसके लिए उसका खर्चा भी बच जाएगा, वो उतना GH यूज या अब्यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो इन फर्स्ट प्लेस ही वो IGF को उतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। Right. Okay. और मेरा इंडियन बॉडी बिल्डर्स के लिए एक और एडवाइस इसमें रहेगा कि जेनेटिक टेस्टिंग इज नॉट वेरी लाइक एक्सपेंसिव। मे बी दे कैन चेक देयर जीन्स एंड दे कैन गेट टू नो कि व्हाट इज देयर लिमिट, वो कितना ह्यूज हो सकते हैं, दे कैन गेट टू नो। या At first place. ये भी एक जरूरी पॉइंट आपने बोला कि इंडिया में दो तरीके से लोग जा रहे हैं। एक मैं देख रहा हूं कि अगर किसी की हाइट 5'5" है, 5'6" है, राइट, तो वो बंदा टारगेट कर रहा है कि मेरा वेट जाए 120-130 kg, विच इज हाईली इम्पॉसिबल। काइंड ऑफ, यस, राइट। सो Yeah. आप 212 कैटेगरी पे कॉन्सेंट्रेट करो, या फिर अभी ये जो बंदा है अभी जो 212 जीता था लास्ट टाइम, ही इज नॉट वेरी ह्यूज। कौन, क्लैरिडा? हाँ, ही इज नॉट वेरी ह्यूज, राइट। Yeah, इवन yes. डेक्स्टर जैक्सन का भी अगर आप उनका पूरा लाइफ देखो, बॉडी बिल्डिंग लाइफ उन्होंने जो बिताया है, उसमें भी उन्होंने हार्डली मेरे हिसाब से 10 to 14 kgs मसल गेन किए इन लास्ट 10-15 years, आई कैन से। सो मसल गेन कितना करना है, किस स्पीड पे करना है, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यू डोंट नीड टू बी दैट ह्यूज। I think genetic testing is a boon to bodybuilders all over the world. Maybe they can get to know their, उनको अपने वो जीन्स पता चल जाएंगे कि वो अपने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कितने रिस्क पे हैं, किडनी डिजीज के क्या रिस्क है, लिवर डैमेज और लिवर कैंसर के क्या रिस्क हैं। ये सारे आपके जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स को अगर चेक करें, जीन कोड करा लें, तो पता चल जाएगा। मे बी दे कैन गेट टू नो इफ दे शुड बॉडी बिल्ड और नॉट। क्या पता कोई जेनेटिक वो पॉलीमॉर्फिज्म होती है, कुछ लोग ApoE4 के होमोजाइगस होते हैं, तो दे कैन डेवलप एथेरोस्क्लेरोसिस एट अ वेरी हायर स्पीड। सो मे बी अगर उनको बॉडी बिल्डिंग करनी भी है तो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट थेरेपी पे पहले से वो रह सकते हैं, और शायद दे माइट ऑप्ट नॉट टू बॉडी बिल्ड। Right. So I think genetic testing is a boon, and they can get to know कि उनका risk कितना है with this bodybuilding lifestyle, and also they can get to know कि how huge will they get. हम अभी जैसे हार्ट के ऊपर ही मेनली बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने
पॉइंट्स जो कॉकटेल के थ्रू होता है वो पूरा बता दिया है हाँ आपको। हाँ अगर आप चाहो तो मैं फिर से रिवाइज कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने जितना इस फील्ड में स्टडी किया, दिस इज द ओनली रीजन, लाइक ये जो 4-5 उसके साथ ये 2-3 ऐड हो सकते हैं, बट हेवी यूजेस ऑफ एंटी एस्ट्रोजन, हेवी यूज ऑफ स्टार्टिंग, फिर आपका हेवी यूज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, एंड्रोजन्स मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में वो कवर हो ही गया। सो ये सारी चीजें हुई। फिर जेनेटिक फैक्टर एक आया, और दूसरा निग्लेक्टिंग योर हाई ब्लड प्रेशर, या निग्लेक्टिंग योर हाई ब्लड प्रेशर। सो ये सारा मेन चीजें हैं जो कि बॉडी बिल्डर को हार्ट कार्डियोमायोपैथी के लिए या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। I'd like to bring up a point. हाँ I would like to talk about beta blockers. Beta blockers सर बता रहे थे भी beta blockers के बारे में कि he was also on beta blockers. Beta blockers देखा वैसे- जाए कि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है उसको रिवर्स भी कर सकती है. Yes. Yeah, like if my heart is already, I go and do a fMRI Right. and I see कि my heart is enlarged, मेरा जो ventricle है वो thick हो गया है, I can reverse it. मतलब I can come off the bodybuilding lifestyle, I can use a beta blocker and I can reverse that. So मेरी हार्ट की साइज मैं आपके साथ 2D इको का रिपोर्ट भी शेयर करना चाहूंगा। मेरे Okay. हार्ट की साइज काफी हद तक रिवर्स हो चुकी, काफी हद तक। आई एम Okay. कम्प्लीटली फाइन नाउ, यू नो। और इसमें एक दो चीजें देखिए, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट का भी एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah. जब कोई बॉडी बिल्डर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, सो कार्डियोलॉजिस्ट को ये चीज पता होनी चाहिए कि आप उससे फ्रेंडली होके बात करो, ना कि उसे डराओ, राइट? जैसे कि मैंने पहले कार्डियोलॉजिस्ट से बात की थी, उन्होंने मुझे इतना डराया था कि तुम 3-4 साल तक रिकवर नहीं हो पाओगे, यू आर नॉट इवन सपोज टू डू ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, एंड जिंदगी में कभी प्रोटीन को भी हाथ मत लगाना, वर्कआउट तो बिल्कुल भी मत करना। ये दिस इज व्हाट ही हैड टोल्ड मी। अगर मेरे जगह कोई बंदा होता तो वो तो डिप्रेशन में चला जाता। एंड मतलब इमीडिएटली स्टेरॉइड्स बंद करना और इमीडिएटली लाइफस्टाइल चेंज होना, ये सारी चीजें आपको, और जो मौत का डर है जो डॉक्टर साहब को आपके दिल में डाल रहे हैं, दिमाग में डाल रहे हैं, वो मौत का डर, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होके बॉडी बिल्डर डिप्रेशन में जा रहा है। वेरएज जब मैंने अपना कार्डियोलॉजिस्ट चेंज किया, अभी नेक्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट से मिला, सो ही इज वेरी यंग एंड ही सेड यार वो हुआ बात, वो दैट वाज ड्रग इंड्यूस, व्हाटएवर इट वाज, नाउ यू आर परफेक्टली फाइन, यू कैन स्टार्ट योर प्रेप, right? But you have to take precautions. After every 2-3 months you have to check your 2D echo. So this is how it should be. मतलब आप एकदम से भी डराओ मत और बॉडी बिल्डर एकदम से निग्लेक्ट भी मत करो। तो आई थिंक कि बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल पे हार्ट को सेफ रखने के लिए एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एक बेटा ब्लॉकर, सुटेबल स्टैटिन और मे बी सम सप्लीमेंट्स. What are your thoughts on statins, sir? No, I don't recommend statins. मैं statins जैसे मैंने बोला कि आपका डिप्लीट कर देते हैं CoQ10 लेवल, सो ubiquinol के लेवल्स को. yes, statins easily डिप्लीट कर देते हैं. Otherwise only cholesterol is not the culprit. सर बट द मेन थिंग इज कि LDL का लेवल ऊपर जाएगा तो, और इन्फ्लेमेशन हार्ट में होगी ऑन बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल, तो ब्लैक तो जम नहीं. देखो सर, हम मतलब मैंने नो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग. मैं इसके ऊपर काफी दिन से रिसर्च कर रहा हूँ. कोलेस्ट्रॉल को जो हम कल्प्रेट मान रहे हैं, आप अगर काफी सारे यूट्यूब पे वीडियो भी देखोगे कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द कल्प्रेट फॉर योर हार्ट. कोलेस्ट्रॉल अगर, हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका HDL शुड बी above 30 एटलीस्ट, which gets reduced, which is good cholesterol. वो कम नहीं होना चाहिए, राइट? HDL अगर अच्छा रहेगा तो आपके प्लाक अथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस कम है. और काफी सारे फैक्टर्स है अथेरोस्क्लेरोसिस के लिए. आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे मैंने पहले ही बोला, वो होता ही है. आप हेवी स्टेरॉइड यूजर्स या फिर ग्रोथ हार्मोन यूजर्स का एक बार HbA1c काउंट चेक करा लीजिए. यू विल फाइंड हिम इन अ प्री डायबिटिक स्टेट. एक बात करते हैं पहले, एक बार फिर से ऊपर जा रहा हूँ मैं, ठीक है? सो मेरे को इसके बारे में बात करना था, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर के बारे में बात करना है मेरे को. सो जैसे इसमें लिखा है बोल्डेनॉन, दैट इज एक्विपोइस, एंड स्टैना जो विंस्ट्रॉल है,
सो इनकी अगर आप डिटेक्शन टाइम देखो, हाफ लाइफ नहीं, डिटेक्शन टाइम जो है इनका, मैंने आई वाज लुकिंग इट अप. सो जो स्टैना का ओरल है विंस्टॉल का 3 हफ्ते और इंजेक्टेबल का 6 to 10 वीक्स तक पाया जाता है. एंड एक्विपॉइज गोज अप टू 5 months डिटेक्शन में. सो हाउ डू वी नो कि अभी अभी इसने लिया था एंड नॉट 5 months ago उसके मेटाबोलाइट्स अभी तक मिल रहे हैं? सो दैट कैन बी पॉसिबल, राइट? आई गेस जॉर्ज पीटरसन प्री कॉन्टेस्ट में था और प्री कॉन्टेस्ट में बोल्डिनोन, आई डोंट थिंक, मैंने नहीं देखा है कि बोल्डिनोन यूज हो रहा हो प्री कॉन्टेस्ट. सो मे बी दिस बोल्डिनोन वाज यूज्ड इन हिज ऑफ सीजन. और क्योंकि मेटाबोलाइट टेस्टिंग की गई है तो बोल्डिनोन बहुत लंबे समय तक पाया जाता है, इसलिए बोल्डिनोन के मेटाबोलाइट्स पाए गए. एंड स्टेनाजोलोल ऑफ कोर्स इज अ प्री कॉन्टेस्ट ड्रग, सो ऑफ कोर्स स्टेनाजोलोल का यूज था. एंड इफ वी कम टू द मेटाबोलाइट सेक्शन, हम जो बेसिकली एक बार भैया निकालना मेटाबोलाइट सेक्शन. प्री कॉन्टेस्ट ड्रग्स होती हैं लाइक मेस्ट्रोन इज नॉट देयर, फ्लूऑक्सीमेस्ट्रोन, हेलोटेस्टिन इज नॉट देयर, प्रीमोबोलान इज नॉट देयर, क्लेनबिट्रॉल इज नॉट देयर, एंड कौन सा एनावार भी शायद नहीं है, डायनाबॉल भी नहीं है, ऑक्सैंड्रोलोन, एनावार इज नॉट देयर. ये सारे जो प्री कॉन्टेस्ट ड्रग थे, ही वाज ऑन नन ऑफ देम. राइट. क्योंकि इन ड्रग्स पे होता तो उनके मेटाबोलाइट्स पकड़े ही जाते, ऑफ कोर्स फॉर श्योर पकड़े ही जाते, क्योंकि किसी भी मतलब इनमें से कंपाउंड्स की हाफ लाइफ या डिटेक्शन जो एलिमिनेशन लाइफ है इतनी छोटी नहीं होती कि प्री कॉन्टेस्ट कोई बंदा है और उसके ये सारे कंपाउंड्स नहीं पकड़े जा रहे हैं. तो बेसिकली ही वाज लाइक ऑन अ ओल्ड स्कूल साइकिल वो कर रहा था. And he was just detected with boldenone, which I don't think it was used pre-contest. Right. He was just using stenozolol pre-contest. और boldenone इसलिए पाया गया क्योंकि उसकी जो elimination life है बहुत लंबी है. I guess more than 5 or 6 months. Yeah, 5 months. Yeah. Yeah. So is और वो boldenone को उसमें यूज कर रहा था, या मे बी हो सकता है कोई स्टेरॉइड उसको फेक दी गई हो जो boldenone हो, या उसको कुछ और बोल के दी गई हो, तो मे बी इसलिए बोल्डिनोन के मेटाबोलाइट्स पाए गए. एंड ही वाज जस्ट ऑन स्टेना, और उसके जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल से वो एलिवेटेड है. तो इट फील्स कि इस रिपोर्ट के हिसाब से, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से, ही वाज जस्ट ऑन टेस्ट एंड स्टेनाजोलोल प्री कॉन्टेस्ट. वी कैन सी कि टेस्टोस्टेरोन भी यूज हो रहा है प्री कॉन्टेस्ट. हाँ जी, बट डू यू रियली थिंक यूएस में भी ऐसा होगा फेक एनाबॉलिक्स वाला? एक्विपॉइज इज वेरी कॉमन, इजंट इट? Boldy. Yeah, लेकिन Boldy is very least faked, I think. Yeah. तो probably Boldy pre-contest होने का चांस नहीं है. वो जो ऑफ सीजन में यूज कर रहा था उसके मेटाबोलाइट्स पाए गए. Okay. I'll tell you डुप्लीकेसी किस में होती है. जैसे प्रीमो is very rare to find. हाँ जी. प्रीमो बोलल, तो उसके जगह पे यूजुअली नैंड्रोलोन फिनाइल प्रोपेनेट दिया जाता है, which is shorter ester of deca, and it gives you that fullness immediately. Right. So usually बोल्डेनोन मतलब किसी दूसरे ड्रग के नाम पे बोल्डेनोन नहीं आता. Okay. तो उसके चांसेस कम है. जैसे डॉक्टर दिव्या ने बोला कि पहले ही यूज किया होगा बोल्डेनोन, वैसे ही लगता है मुझे भी कि पहले यूज किया होगा. और see you don't, we can't tell exactly what he was on, right? अगर हम काफी बार देखते हैं कि बाहर के, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बाहर के बॉडी बिल्डर्स काफी हेवी स्टेरॉइड साइकिल्स यूज करते हैं, बिकॉज इट कम्स टू अस थ्रू इंटरनेट ब्लॉग्स, जो वेबसाइट पे ब्लॉग्स बनाते हैं उसके थ्रू हम देखते हैं. जैसे बिग रैमी की साइकिल आ गई है ना. हमारे जमाने में जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी तब रॉनी कोलेमन की साइकिल घूम रही थी. फिर हाँ, अभी ये जर्मन का बॉडी बिल्डर कौन है, ह्यूज मार्कस रूल, उसका साइकिल घूम रहा था. अच्छा. सो ये ब्लॉगर्स क्रिएट करते कि इसने इतना लिया है उतना लिया है, एंड फिर लोग उस पर बिलीव करने लगते, राइट? मेरे हिसाब से बाहर के लोगों के डोजेस जो एमजी में है वो काफी कम है एज कंपेयर टू इंडियंस. इंडियंस का अगर आप अब्यूज देखो तो इस लेवल पे है कि 750-1000 mg टेस्टोस्टेरोन तो काफी नॉर्मल हो चुका है लोगों के लिए. वो तो अगले पिछले 1-2 साल में जो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि यू हैव टू गो जस्ट अबाउट टीआरटी डोज, तो लोग थोड़ा समझ के थोड़े डोसेस कम कर रहे हैं. अदरवाइज 2005 से लेके 15 तक का जो फेज था, इसमें अब्यूज वाज मतलब बियॉन्ड एनीवन्स इमेजिनेशन. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे ये लगता है
जैसे डॉक्टर दिव्या ने बताया वैसे बोल्डेनोन पहले यूज हुआ होगा और सनाडोलॉल बाद में चला होगा साथ में। हाँ जी, प्री कॉन्टेस्ट। यस, राइट। बट अगर हम देखें तो जो स्टेरॉइड के जो इसमें सिलेक्शन है वो काफी ओल्ड स्कूल है और काफी मतलब सही मानेंगे इसको, क्योंकि लाइक जिसको बताते हैं ना कि ट्रेनबोलोन तो चाहिए ही, मैस्ट्रॉन तो चाहिए ही, नन ऑफ द मेटाबोलाइट्स आर फाउंड। सो वी कैन सी कि एक 212 ओलंपिया लेवल का बॉडी बिल्डर, ऑफ कोर्स उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, नो डाउट, अफ्रीकन अमेरिकन है तो वैसे भी उसके जेनेटिक्स ज्यादा अच्छे होते हैं इन लोगों के, but he was using none of them, like just terazolol and testosterone is found, and boldenone, which was of course not used in the which was not used pre-contest. Right. So this is a very responsible cycle, in my opinion. What do you think? Pre-contest. अगर आप प्री कॉन्टेस्ट जैसे हम बात कर रहे हैं, पीक वीक की बात कर रहे हैं, लाइक राइट बिफोर द कॉन्टेस्ट, दिस वाज 2 days आउट जो उसकी डेथ हुई बिफोर द कॉम्पिटिशन। सो अगर आप पहले की बात करते हो, यू गो लॉन्ग बैक इनटू ऑफ सीजन, अगर आप बल्किंग का टाइम देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, व्हाट डू यू थिंक, वाज ही ऑन समथिंग स्ट्रांग देन? क्योंकि आते हुए जैसे आप बता रहे हो रिस्पांसिबल साइकिल है, बट ऑफ लाइक ऑफ सीजन वी डोंट नो व्हाट हिज साइकिल वाज। Yeah, even if he was using drugs like boldenone तो पाया ही गया है, which shows कि he was using boldenone. Maybe in the off season, mostly what bodybuilders use, mostly, I'm not talking about everyone, they use generally long esters. Right. लंबे एस्टर्स चलाते हैं, तो लंबे एस्टर्स 4-5 महीने 6 महीने आराम से पाए जाते हैं, लाइक इवन एन एनथेट का जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ है, Right. सॉरी एलिमिनेशन लाइफ है, नॉट हाफ लाइफ, Yeah, the वो detection भी time. महीनों में होगा। Okay. तो वी कैन सी कि देयर वाज नो डेका, डेका इज डेका डुराबोलिन, अनडेका 18 is months, like 18 months, 18 18 months. months. Wow. So he was not on deca. Of course he was not on something which comes with an ester of enanthate, वो भी पाया जाता। Of Right. course testosterone होगा, no doubt, but there was no tren enanthate, mastron enanthate और primobolan enanthate, ये सारे ड्रग्स नहीं थे जो कि ऑफ सीजन में भी लोग यूज करते हैं। Mm-hmm. सो दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल साइकिल, मेरे ख्याल से जो लोग ऐसे एब्रप्टली ब्लेटेंट यूज करते हैं, Mm-hmm. उसके हिसाब से दिस वाज अ रिस्पॉन्सिबल साइकिल। Yeah, that makes वैसे साइकिल तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, बट इन कंपैरिजन में हम देखें बॉडी बिल्डर्स जो करते हैं अब्यूज, उसके हिसाब से दिस वाज अ वेरी ओल्ड स्कूल एंड लाइक कंजर्वेटिव साइकिल। Yeah, that makes sense. या ऑल्सो इसमें क्या बोलते हैं, these morticians have not checked them for diuretics. Right. So we don't have the metabolites of diuretics, which might have been used. We can't say because metabolites पाए नहीं गए, पहली चीज। और दूसरी चीज जो सबसे कंट्रोवर्शियल होने वाला है इस वीडियो में, कि जो पोटेशियम के लेवल्स जो इसमें दिख रहे हैं, they have gone way 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 higher. Right. मैंने वही पहले पूछा, वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही मैंने पूछा था कि व्हाट इज दिस पोटेशियम लेवल। आई वोंट टॉक मच अबाउट पोटेशियम बिकॉज अगर पोटेशियम उसका डायरेटिक्स के वजह से अगर कुछ हुआ रहता तो उसे जैसे कि मुझे पता है अगले दिन, डेथ के पहले दिन उसने वर्कआउट किया अच्छे से एंड ही वाज नॉट टायर्ड एट ऑल। राइट। आपको अगर जब आपको हिट करता है डायरेटिक्स, सो यू गेट मतलब वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाने वाले उसके जो सिम्टम्स थे वो कुछ भी नहीं था उसमें। Right. Yeah, even I read the I same. don't पोटेशियम का हार्ट के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट हुआ होगा, बट आई डोंट थिंक कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाने की वजह से ये ऐसा कुछ हुआ है करके। Right. अगर अरिथमिया है तो इट पोटेशियम कैन बी द रीजन, बट उसके पहले के जैसे रीजंस मैंने बताया वो काफी ज्यादा मुझे रिस्पॉन्सिबल लगता है। बट आईड लाइक टू ब्रिंग अप अ पॉइंट, ये एक ऑटोप्सी रिपोर्ट है और आफ्टर डेथ पोटेशियम के लेवल्स नेचुरली अप जाते हैं, सेल्स स्टार्ट टू रिलीज पोटेशियम। सो ये पोटेशियम जो ऊपर गया है ना, हम इससे कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये डायरेटिक पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स की वजह से था या नहीं, क्योंकि एक वो भी होता है जिसमें लोग ये मोर्टिशियंस क्या करते हैं कि डेथ का टाइमिंग, मतलब पोटेशियम का एलिवेशन जो है आफ्टर डेथ इतना कंसिस्टेंट है कि जो क्लिनिशियंस हैं वो पोटेशियम के लेवल्स कितने ऊपर गए हैं इससे ये पता लगा लेते हैं कि कितने देर पहले डेथ हुई थी।
Okay. Wow. तो आफ्टर डेथ द लेवल्स ऑफ पोटेशियम गो अप फॉर श्योर, Okay. और उससे ये भी पता चलता है कितने पहले डेथ हुई थी। तो इसमें और दूसरी बात की मेटाबोलाइट्स किसी भी डायरेटिक्स केस में देखे नहीं गए हैं। मैंने जहां तक देखा, नन ऑफ द थायराइड्स और डाइक्लोरोथायराइड्स वर सीन। तो ये जो पोटेशियम का लेवल ऊपर गया है, दैट इज ड्यू टू डेथ फॉर श्योर, बट देयर माइट हैव बीन डायरेटिक यूज, बट वी कांट से, क्योंकि उसके मेटाबोलाइट्स नहीं है और हम इस पोटेशियम लेवल पे नहीं जा सकते। बट मेरा जैसे दिव्या, सॉरी, अगर आपने डैलस का वो देखा है ऑटोप्सी, उसके अंदर दे फाउंड एवरीथिंग, अल्कोहल, आपका THC, CBD, स्टिमुलेंट्स, इसमें दे हैवंट इवन चेक फॉर स्टिमुलेंट्स। मैंने इतना ध्यान से तो नहीं देखा, मैंने सिर्फ LVH और एथेरोस्क्लेरोसिस देखा मैं था नीचे जाके और पूरा थायराइड देखा, कैंसर। डैलस का मैंने नीचे जाके देखा है, he had everything in his system, सब कुछ था उसके सिस्टम में, इंक्लूडिंग कैफीन, THC, आपका जो मैरिजुआना होता है, CBD, अल्कोहल, सब था उसके सिस्टम में। सो इसके में they haven't checked for any of that. I mean, obviously मैं आप मानता एक नहीं हूँ बार कि he was probably drinking before 2 days before his show, but stimulants का there can be a role, right? आप एक बार ना ऊपर ले जाना हार्ट वाले में, वी कैन हाँ। सी कि all his veins and arteries are clear. There was no atherosclerosis, which is like Yeah. very amazing to find out. So my take कि उसकी डेथ जो हुई है वो So I want to mention one point. There was no evidence of atherosclerosis. That means his cholesterol was pretty normal. which is Cholesterol very levels hard. were no. I am talking about his cholesterol levels. Yes, of course. No, Of course. that means he must had used heavy statins. Maybe, and he would have depleted his CoQ10 levels. CoQ10. Yeah. Yes. Yeah, so that could be a very good reason for dysarrhythmia, improper functioning of the mitochondria in the heart. Yeah. Yeah, but my final take is कि एथेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं है, तो एंड टाइम पे क्या हुआ ना कि ये लोग पानी वगैरह छोड़ते हैं, ठीक है, ऊपर से मे बी जैसा कि सर ने बताया कि हैवी स्टैटिन यूज हुआ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन जो है हार्ट के सेल्स में वो डिस्टर्ब हुई, और मे बी डायरेटिक्स यूज हुए होंगे विच इज नॉट क्लियर इन दिस रिपोर्ट, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी थी, देयर वाज सिग्निफिकेंट थिकनिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट, एंड आल्सो द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एंड मोमेंट पे ये जो डिसरिथमिया हुई है वो मेनली हुई है कि ब्लड के थिक होने की वजह से, मे बी हो सकता है डायरेटिक्स यूज हुए हो, वैसे भी ये लोग पानी कट करके रखते हैं, तो जो ब्लड की थिकनिंग इफेक्ट होगी ना, पानी की डिहाइड्रेशन, उसके वजह से और हार्ट ऑलरेडी उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रखी है, और तो इसके वजह से मे बी उसकी जो हार्ट की जो रिदम है वो हेवायर हो गई होगी। और बोल्डेनर और सैनाजोलोल, ये दो ड्रग्स, और उसके साथ ऑक्सीमेथेनॉन, जो कि इसने सिर्फ ऑक्सीमेथेनॉन यूज नहीं किया, लेकिन बोल्डेनर और सैनाजोलोल दोनों भी आरबीसी काफी हद तक बढ़ाते हैं। Yes, which will completely like lead to that thickening of the blood. एंड में आपने आपका ब्लड ऑलरेडी थिक है एंड्रोजन यूज की वजह से, उसके बाद आपने डायरेटिक्स माइट हैव बीन यूज्ड, जो ब्लड को और थिक करेगा, क्योंकि सोडियम बाहर जाएगा तो पानी भी बाहर जाएगा, इसीलिए तो वो बनाते हैं इसको। और तीसरी चीज इसमें ये रही होगी कि एंड में पानी भी कट करा होगा, तो ब्लड बहुत थिक हो गया होगा, और ये अपने होटल में अकेले था एट द टाइम ही डाइड, सो मे बी वो हाइड्रेट नहीं कर पाया होगा और हार्ट डिसरिथमिया में चली गई होगी। यस, जिसे हम हाइपोवोलेमिक शॉक बोल सकते हैं। मेरे ख्याल में तो यही है, बिकॉज जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी थी दैट वाज नॉट पैथोलॉजिक, राइट, ओके, तो इन माइट टेक ये हो सकता है। सर आपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स देखे कितने हैं? 15,000। नहीं, मैंने नहीं देखा। कितना? 15,000, लेकिन वो यूरिन में था, ब्लड सैंपल नहीं था वो। तो इसने वाटर बेस्ड टेस्टोस्टेरोन लिया होगा, फिर भी 15,000 जाएगा। ये यूरिन में पाया गया है, यूरिन में ना एक अलग मेटाबोलाइट आता है इसका, उसके थ्रू यूरिनेट आता है, तो उसके लेवल्स बहुत हाई जाते हैं, इसके वजह से। ब्लड का सैंपल नहीं था ये टेस्टोस्टेरोन का। मुझे वही लग रहा है कि जिसे टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन बोलते हैं,
कि लास्ट में बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, उसका हाफ लाइफ काफी शॉर्ट रहता है ना, और वो वाटर रिटेंशन भी नहीं देता, सो दे प्रेफर टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन। और हाफ लाइफ शॉर्ट मतलब 2 घंटे का है, तो दिन में 5 से 6 बार लेते हैं वो टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन, minimum 5 to 6 times they take. So that might be also possible, that high levels of testosterone. But also इसमें एक और पॉइंट ये है कि यूरिन में जो टेस्टोस्टेरोन आता है एक मेटाबोलाइट के साथ आता है, तो इसके और वो बहुत हाई आता है, बहुत ज्यादा, तो मे बी उसकी वजह से ये इतने 15,000 गया नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, which is 150 nanograms per ml here. ग्लूकोज रेट का कह रहे हो ना, दैट यूरिन में जो ओके यस यस, उसके वजह से मे बी, बिकॉज दैट इज वेरी हाई, 15,000 है वो। आई मीन इट्स नैनोग्राम पर मिलीलीटर व्हिच इज अ लॉट। हाँ, पर एमएल में उतना है। हाँ जी, तो डेसीलीटर में तो और ज्यादा हुआ ना, छोटी हो गई उसकी वॉल्यूम। तो ये इसमें जो ये टेस्टोस्टेरोन और एपीटेस्टोस्टेरोन की जो रेशियोज है, जो ये एपीटेस्टोस्टेरोन होता है वो जो स्टेरॉइडोजेनेसिस होती है उसमें अपस्ट्रीम होता है टेस्टोस्टेरोन के। तो इसमें हमने देखा गया कि ये जो एपीटेस्टोस्टेरोन के लेवल्स है दे आर नॉट डिटेक्टेड, यानी कि जो इंटरनल स्टेरॉइडोजेनेसिस थी दैट वाज कंप्लीटली ऑफ, शट डाउन या टेस्टोस्टेरोन टू एपीटेस्टोस्टेरोन का ये रेशियो जनरली मतलब ये 4:1 का होता है, मतलब एट लाइक मैक्स पे 4:1, और इसके ऊपर अगर लेवल जाए तो हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि बंदा डोप कर रहा है कि नहीं टेस्टोस्टेरोन। हालांकि अब तो बहुत अच्छे तरीके आ गए हैं पकड़ने के, बट ये भी हो सकता है, लाइक ये भी चेक करते हैं डोप में टेस्टोस्टेरोन टू एपीटेस्टोस्टेरोन रेशियो, क्योंकि अगर बाहर से दिया है तो एपीटेस्टोस्टेरोन कम होने लगेगा या शायद बंद ही हो जाए। और अगर लिवर भी हम देखें और हम और ऑर्गन्स भी देख लेते हैं एक बार, लिवर भी लाइक जनरली 150 ग्राम का होता है, 150 ग्राम ही होता है ना, हाँ 150 ग्राम ही होता है शायद। तो जो लिवर है वो भी बहुत ज्यादा इनलार्ज नहीं है ना, उसमें कोई फाइब्रोसिस वगैरह की भी चीजें नहीं देखी गई हैं। प्लस बॉडी बिल्डर्स के जो लंग्स होते हैं वो भी, उसमें भी हाइपरट्रोफी हो जाती है, और जो लंग्स हैं वो भी ऑलमोस्ट नॉर्मल है साइज में। लिवर भी इज जस्ट उसमें हाइपरट्रोफी हुई है, बड़ा हुआ है, बट बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट लुक्स क्लियर। लिवर में बहुत से प्रॉब्लम देखे जाते हैं, खास करके बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल पे, फाइब्रोसिस, सिरोसिस एंड एवरीथिंग, वो भी सही है। सो यहाँ पे एक ही मेरा जो इसमें पॉइंट है वो एक ही पॉइंट निकलता है कि एंड में ब्लड थिकनिंग जो हुई है, मे बी डायरेटिक्स यूज हुए थे, एंड्रोजन्स में ब्लड थिक होता है, जैसे सर ने बताया, आरबीसीज और प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और हार्ट के इन्फ्लेमेशन के लेवल्स बढ़ते ही हैं बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल पे, उतनी हार्ट ट्रेनिंग प्लस इतने एंड्रोजन्स, ग्रोथ हार्मोन, तो जो डिसरिथमिया हुई है वो ब्लड थिक हो गई है, और बहुत कम पानी पिया रहता है आदमी, डिहाइड्रेटेड रहता है उस टाइम पे, और प्लस वो कमरे में अकेले था तो थोड़ा बहुत फेंट करा होगा, तो थोड़ा डिसरिदम मतलब आउट ऑफ रिदम गया होगा जब हार्ट, और वो जब फेंट करा होगा तो उसको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं रहा होगा, तो वो डिसरिथमिया कॉज करी होगी। जैसे शुरू में बात हुई थी इजेक्शन फ्रैक्शन की, there is cardiomegaly with ventricular hypertrophy, so उसके वजह से ejection fraction might have gone down, right? जैसे आप कह रहे हो heart एक तो blood thick हो गया, then the ejection fraction is probably low, yes, दोनों हो सकता है, ऐसा combine करके must have caused the problem, right? but यहाँ पे देखो yes, क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए, लो इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए मेन थिंग यही है, हाई आरबीसी, राइट? लो इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए मेन, क्योंकि उसी के थ्रू फिर ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया होता है, right. मतलब आपके हार्ट के काफी हार्ट के ऊपर इस्केमिक पैचेस पाए जाते हैं, हार्ट को ब्लड सप्लाई हार्ट टिश्यू को सही से नहीं हो रहा है, हाँ जी, राइट। सो वो एक रीजन हुआ। दूसरा जैसे मैंने बोला था, मतलब अगर मैं सबको एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करूं, तो डॉक्टर दिव्या ने जैसे बताया वैसे बोल्डेन और स्टेनोजोल उसके वजह से हाई आरबीसीज और डाययूरेटिक्स हो सकते यूज किया होगा, और जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा ओपिनियन है
कि अथेरोस्क्लेरोसिस बिल्कुल भी नहीं पाया गया, मतलब हेवी स्टैटिन्स यूज हुए जिसकी वजह से CoQ10 डिप्लीट हुआ, और जैसे कि बॉडी बिल्डर्स एंटी ईस्ट्रोजन एंड में यूज करते हैं टू डिप्लीट टू रिड्यूस फैट परसेंटेज, तो ईस्ट्रोजन जो कि आपके ब्रेन, हार्ट और बोन हेल्थ के लिए काफी जरूरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, Right. उसके लेवल्स भी डाउन चले गए, तो वो हो सकता है। सो इन सबका कॉकटेल ही मुझे लगता है कि दिस वाज द रीजन। Right. बेसिकली द हार्ट वाज वीक और डिहाइड्रेटेड हुआ बंदा, ब्लड थिक था, रिदम आउट ऑफ थिंग गई, मतलब आउट ऑफ द वे गई, फेंट हुआ बंदा, कोई पानी पिलाने के लिए नहीं था, मे बी सिर्फ पानी पिला देते तो ठीक हो जाता, बिकॉज ही वाज अलोन इन हिज होटल, सो एंड दिस हैपेंड, माय टेक इज दिस। Agreed. क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे सर ने बताया कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम, उसमें क्या हो रहा है ना कि आपका ब्लड थिक है, विच इज हार्डर टू पंप, Yeah. हार्ट से थिक ब्लड को पंप करना मुश्किल है, प्लस आपके हार्ट में जिस वेंट्रिकल से हार्ट पंप होता है वो ऑलरेडी छोटा हो चुका है, अंदर तो बंद. उसकी कैपेसिटी पंप करने की और कम है, ब्लड भी थिक है। और हाइपरट्रॉफी आपके मींस व्हाट? हाइपरट्रॉफी मतलब ये नहीं कि साइज बढ़ गया, हाइपरट्रॉफी मतलब जो अंदर के मसल्स है उनकी थिकनिंग बढ़े। इतनी ज्यादा हो गई कि उसके वजह से अंदर की कैविटी रिड्यूस हो गई। या इसीलिए मैं एक पॉइंट कह रहा था कि मोर्टिशियन को इस केस में स्पेशली कैविटी साइज देखना चाहिए था, बट उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि दे डोंट नो कि ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, तो वो एक जनरल पर्सपेक्टिव से ही ऑटोप्सी करते हैं, तो इसलिए। Right. बट इफ वी कंपेयर दिस ऑटोप्सी टू डैलस ऑटोप्सी, तो अगर डैलस की ऑटोप्सी देखें ना तो हम एक्चुअल में देख सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग कितना खतरनाक गेम है। और मैं आई लाइक टू क्रेडिट जॉर्ज पीटरसन फॉर दिस, like he's no more in the world and I like to take his like bring him into the limelight, and I'll say कि this guy and his coach also I'd like to give him credit कि जो choices थे drugs के बहुत सही थे, और भी एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं थी, लिवर में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, किडनी में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं बट किडनी थोड़ी हाइपरट्रोफी हुई थी बस, इसके अलावा भी किडनी में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। Yeah. ये सारी चीजें नहीं थी, एंड Very responsibly. और जो उसके हार्ट के साथ हुआ वो बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल पे आप उस लेवल पे भी रख ले रहे हो, अपने हार्ट को इस लेवल पे रख ले रहे हो, एट दैट हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग इज आल्सो अ गुड थिंग। Yeah. I mean, full credits to him and his coach. yeah. Very But मैं कह सकता हूँ कि he was unlucky, he was Yeah. quite Yes. unlucky to face this condition, because जिस लेवल पे इंडिया में अब्यूज हो रहा है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किसी बंदे को उठा के देखो तो उसके भी डोजेस इससे हेवी हो सकते हैं, उसका Right. भी कॉम्बिनेशन काफी सारे ड्रग्स का हो सकता है। इसने तो सिर्फ 2 ही ड्रग्स यूज किए, मुझे नहीं लगता डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने वाला कोई बंदा आज इंडिया में 2-3 ड्रग्स से कम, 3-4 ड्रग्स से कम ड्रग्स का कॉम्बिनेशन करता है। Right. Yeah. So all credits to him and his coach. All credits. कार्डियोलिक इज, जैसे मैंने बोला, इट्स अ मिक्सचर ऑफ 3-4 ड्रग्स जिसका पेटेंट है। वन इज यूबिक्विनोल, सेकंड वन इज D-ribose which helps you for diastolic dysfunction. Third is your Arjun Chal, which is cardiotonic, which increases your pumping capacity of your heart. And one more is curcumin extract, which is which reduces inflammation. Right. Another one is Arjun Chal मैंने cover कर लिया, बाकी अल्फा nattokinase, yes, nattokinase जो कि अभी पेटेंट में ऐड हुआ। nattokinase helps you for atherosclerosis, मतलब ऐसे रिसर्च में पाया गया कि 20 to 30% atherosclerosis can be reversed with the help of nattokinase. Wow. Okay. एक बार ना इसको कंक्लूड कर देते हैं, रुको। Okay, so autopsy clear हो गई है कि what we think may have happened here. अब मैं ये पूछना चाहूंगा, आप लोग बॉडी बिल्डिंग कोचेस भी हो साथ साथ, so what are your suggestions to the, you know, जो नए बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं अभी, what should they take care of before getting serious about this? जैसे आपने जेनेटिक्स की बात करी थी, उनको टेस्ट कराना चाहिए, but if everything is fine, they get on to into proper bodybuilding, what should they take care of? क्योंकि लोग क्या करते हैं, घुस गए, इंजेक्ट करना शुरू किया, वर्कआउट करना शुरू किया, प्लान करना शुरू किया, किसी को ऑन साइकिल क्या करना है वो नहीं पता, पोस्ट साइकिल क्या करना है वो नहीं पता।
So is there some suggestions जो आप दोनों देना चाहोगे? सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट, मतलब सिंपल थिंग इज ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग. Right. आपको जब भी आप कभी साइकिल पे हो, हफ्ते में कम से कम 3 बार तो आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए. दूसरी बात, फास्टिंग शुगर, आपका शुगर चेक करना चाहिए. तीसरी बात, साल में कम एटलीस्ट, मतलब आपकी हाइपरट्रॉफी इमीडिएटली नहीं होती, आप कितना भी अब्यूज करो, इट विल टेक एटलीस्ट ईयर फॉर दैट काइंड ऑफ हाइपरट्रॉफी. ये नहीं कि बंदे ने फर्स्ट 1 साल में अगर यू स्टार्ट किया साइकिल तो उसी दिन आपको उसी साल आपको हाइपरट्रॉफी आई. 2-3 साल जब वो साइकिल पे साइकिल रिपीट करने के बाद यू विल गेट दैट हाइपरट्रॉफी. तो आपको साल में एक बार कम से कम 2D को चेक करवाना चाहिए. सो ECG will also give you good, मतलब इंडिकेशंस दे सकता है. साल में 2 बार आप ECG कराओ. हाँ जी. और दूसरा KFT, LFT, ये तो नॉर्मल चीजें होती रहेंगी हर 3 महीने बाद. या फिर अगर आपने, मैं तो लोगों को अगर क्रिएटिन भी यूज कर रहे तभी आप KFT कराओ करके मैं बोलता हूँ. सो यू डोंट नो हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग. सो ये सारे टेस्ट करना जरूरी है. उसके साथ साथ सप्लीमेंट, जैसे हमने बोले, हार्ट के लिए सप्लीमेंट्स यूजुअली लोग लीवर के लिए ले लेते हैं, जबकि लीवर इंजरी इज रिवर्सिबल अप टू सम एक्सटेंट. लीवर इंजरी इज रिवर्सिबल and it gives you indication, but this is not the fact with kidney and heart. Yeah. Kidney और heart आपको symptoms usually देते नहीं है. So आपको इन सब के लिए एज अ प्रोटेक्शन सप्लीमेंट तो यूज करना ही है. दूसरी बात, आपका जो डोजेस वो ये नहीं है कि ज्यादा यूज करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा. एक आपको उसकी लेवल पता चलनी चाहिए कि इसके ऊपर ये साइड इफेक्ट्स आते हैं, या फिर इतने टाइम के बाद मुझे ऑफ साइकिल जाना चाहिए. ये नहीं कि आपका कंपटीशन आगे चला गया तो आपने साइकिल भी एक्सटेंड कर दिए. राइट. सो दैट इज अनदर थिंग. और मेरे हिसाब से इतनी सारे प्रिकॉशंस काफी है बॉडी बिल्डर्स को. ठीक है. अगर डॉक्टर दिव्या कुछ ऐड करना चाहेंगे. हाँ जी. इसमें मैं यही ऐड करना चाहूंगा, जेनेटिक टेस्टिंग. क्योंकि कुछ लोग किसी प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा हाईली डिस्पोज होते हैं, प्री डिस्पोज होते हैं. एंड मैं डालस के केस में भी मानता हूँ कि उसकी जो हार्ट डिसीज की जेनेटिक्स थी बहुत खराब थी. He was just 25. Yes. Like I can understand the blatant use of growth hormone and everything, but still he was so young. तो जेनेटिक टेस्टिंग. दूसरी चीज, जैसा कि सर ने ब्लड टेस्ट बताई दिए टाइम टू टाइम क्या क्या चेक करने के लिए. और तीसरी चीज ऑर्गन इमेजिंग फॉर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो प्रोफेशनल लेवल पे है. वो साल में 1 बार या साल में 2 बार, 1 से 6 months अपने ऑर्गन्स की इमेजेस देख सकते हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड्स, MRIs. ये सब इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर सप्लीमेंट्स एंड प्रॉपर मेडिसिन अकॉर्डिंग टू व्हाट टेस्ट, आपके टेस्ट में क्या चीजें आ रही हैं. और अगर आप टेस्ट नहीं भी करते हो, बिना टेस्ट के भी कुछ चीजें, कुछ सप्लीमेंट्स ऑन अ बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल एंड कुछ मेडिसिन विल मेक योर बॉडी बिल्डिंग जर्नी वेरी इजियर फॉर योर ऑर्गन. तो यही मैं ऐड करना चाहूंगा. बाकी सर ने बता ही दिया कौन कौन से टेस्ट है. ठीक है. Thank you so much, Dr. Prashant and Dr. Divya. Thank you so much आपके input के लिए. And I hope you guys enjoyed this. If you did, follow us on Instagram. मैं सबके IDs डाल दूंगा, Instagram and YouTube. And I will see you guys in the next video. Thank you so much for watching. Love you guys.